السلام علیکم جی. آج کا دن تو تاریخی دن ہے اور آج کا دن بہت ہی یادگار دن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ عمران خان کو شکست ہوئی ہے اور ISI جیت گئی ہے، یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں اس کی تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ مداخلت کی بات کے اوپر رونا رو رہی ہے، مداخلت کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ جی ججز کے معاملات کے اندر مداخلت ہو رہی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت کے اندر مداخلت کر رہی ہے. اور عمران خان کا تو یہی سٹانس ہے نا کہ فوج نے مداخلت کر کے ان کو نکالا اور وہ اس لیے نکلے کیونکہ فوج نیوٹرل ہو گئی، اور اس لیے نکلے کیونکہ مداخلت جو ہے فوج نے وہ بند کر دی. اور ہاں مطلب یہی جو کنفیوژن ہے نا، یہی عمران خان کا سٹانس ہے. تو یہ جو مداخلت ہے نا، یہ مداخلت گڈ مداخلت اور بیڈ مداخلت، جس طرح PTI نے ایک ٹرم لانچ کی تھی گڈ طالبان بیڈ طالبان، بالکل ویسے گڈ انٹرفیئرنس بیڈ انٹرفیئرنس، یعنی اچھی مداخلت اور بری مداخلت، گندی والی مداخلت. یہ کیا ہے، اس سب کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن ابھی چند دن پہلے ایک خبر میری نظر سے گزری کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بیسیکلی وزیر اعظم آفس کو نوٹس دیا کہ وہ تمام سول اور ملٹری ایجنسیز کو ہدایات جاری کریں کہ وہ کسی بھی جج یا ان کے عملے یا کسی بھی رکن سے رابطہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، یہ جب خبر میں نے دیکھی، اس کے ٹکرز میں نے دیکھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، رابطہ نہیں ہونا چاہیے. مگر پھر ایک اور خبر سائملٹینیسلی کچھ ٹائم کے بعد مجھے دیکھنے کو ملی کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق جج ہیں، جج کا نام ہے جی، سابق جج کا نام ہے جسٹس شاہد جمیل. ان کا کہنا ہے کہ جو جسٹس شاہد جمیل کے ایک ساتھی جج اپنے وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر حسین بھٹی کو کس طرح PTI کے اس وزیر کی دعوت اٹینڈ کرنے جایا کرتے تھے. یہ ایک ہی ہائی کورٹ، یہ جو دونوں خبریں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک ہی ہائی کورٹ کی دو متضاد خبریں ہیں کہ ایک طرف ہائی کورٹ لکھ رہی ہے موجودہ پرائم منسٹر کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ یہ دیکھیں جی شکایتیں لگا رہی ہے، ایجنسیاں مداخلت کرتی ہے یہ، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک سابق جج ہیں وہ اپنے ہی ساتھی جج کی کارستانیاں بتاتے تھے کہ جی ایک PTI کا وزیر فون کرتا تھا اور یہ سارے بھاگے چلے جاتے تھے. اچھا، اکیلے نہیں جاتے تھے، اکیلا جج کوئی نہیں جاتا تھا، ماشاءاللہ ججز کی بھی ایک جمع غفیر جاتی تھی. سنتے جائیے اور شرماتے جائیے. میرا تو بیسیکلی یہ دونوں متضاد خبریں دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر میرے تو سر ہی چکرا گیا کہ کوئی سرکاری اہلکار رابطہ کرے تو اسے مداخلت کا نام دے دیا جاتا ہے، مگر یہی رابطہ اگر PTI کی طرف سے ہو یا PTI کا وزیر کرے تو با جماعت حاضریاں لگائی جاتی ہیں. آج کل مداخلت کا بھی بڑا شور سن رہے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ مداخلت کسی کو بھی بری نہیں لگتی ہے، بس مداخلت کرنے والا کوئی اپنا من پسند ہو. یہ میٹر کرتا ہے کہ جو انٹرفیئر کر رہا ہے، جو انسٹرکشنز دے رہا ہے، جو آپ کو کھانوں پر بلا رہا ہے، جس کے ساتھ آپ سوشلائز کر رہے ہیں، جو آپ کو مجبور کر رہا ہے آؤ جی چائے پیے، کھانا کھائے، اور پھر ہلکا سا آپ سے فیور مانگ رہا ہے اور پھر بھاری بھرکم فیور مانگ رہا ہے، وہ جو شخص ہے نا وہ آپ کا پسندیدہ ہونا چاہیے. ان دس کیس یا ان سرٹن کیسز اگر وہ عمران خان ہے، اگر وہ یوتھیا ہے تو بھائی واہ 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 واہ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ یوتھیا نہیں ہے اور اگر کوئی اور ہے تو ہاں جی مداخلت ہو رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہی حال پوری کی پوری عمران خان اور PTI کا ہے. انہیں ہر وہ مداخلت اچھی لگتی تھی جو ان کے فیور میں کی جاتی تھی. اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی تب تک اچھی تھی جب تک عمران خان حکومت کے ہر کام اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ کرایا کرتے تھے. کورم تک اسٹیبلشمنٹ پورا کراتی تھی، آرڈیننس کوئی قانون سازی کرنی ہو تو وہ کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک پالیسی بیان ہو، چاہے وہ طالبان سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ان کو ایک اور موقع دینے کے حوالے سے ہو، ایون تب بھی اگر کوئی بریفنگ دی جاتی تھی تو وہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دلوائی جاتی تھی. حالانکہ عمران خان صاحب اس کمرے میں آنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، اس بریفنگ تک میں آنا پسند نہیں کرتے تھے. مگر جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہوئی تو یہ دہائیاں دینی شروع کر دی گئیں کہ جی نیوٹرل کیوں ہوئے، نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. امریکہ کا سائفر مداخلت تھا اور امریکی ایوان نمائندگان کی جو قرارداد ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر امریکی ایوان نمائندگان میں کوئی قرارداد ہو تو وہ پاکستان کے معاملے میں مداخلت نہیں ہے، لیکن اگر سائفر ہو تو وہ مداخلت ہے. بس آپ دیکھتے جائیے اور شرماتے جائیے. کل عمران خان وزیر اعظم تھے تو جناب فخریہ بتایا کرتے تھے کہ ISI ان کے فون بھی ٹیپ کرتی ہے اور بالکل ٹھیک کرتی ہے. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ خان صاحب کیا یہ ہونا چاہیے، تب وہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے تھے جی بالکل ہونا چاہیے. بھئی میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، تو اگر ISI ٹیپ کر رہی ہے تو کرے. DGI عمران خان صاحب جب بطور وزیر اعظم
बात करते थे नेशनल टीवी के ऊपर, तो वो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन देते थे कि DGI इज़ माई आईज एंड ईयर, प्राइम मिनिस्टर की आंखें और कान होते हैं। तो DGI ने अगर करनी है कॉल्ड स्टेप, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस को बक करना है तो वो बिल्कुल करें, बिल्कुल ठीक है। ISI को पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। आज शहबाज सरकार ने ISI को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी तो तहरीक इंसाफ चीखें मार रही है कि हाय 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 ये क्या हो गया है। मैं ये समझती हूँ कि शहबाज सरकार का ये बहुत ही एक उम्दा इक़दाम है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब ISI को, जो DGI के बारे में कहा करते थे कि जी इनको टैप करना चाहिए कॉल, कोई मसला नहीं जी अगर ये बातें कर रहे हैं और कोई, तो बात आगे ये सुनने को और करने को मिलती थी कि भाई ये किस कानून के तहत कॉल्स टैप हो रही हैं, ये किस कानून के तहत जो है लोगों की प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो लोगों को कोई आईन कानून नहीं पता होता था। अब अगर कोई मशकूक शख्स, उसकी अगर कॉल्स, उसकी अगर रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी अगर टैपिंग हो रही है, तो वो लीगलाइज्ड है। वो ये नहीं कह सकता कि भाई आप किस कानून के तहत कर रहे हैं। तो इसको एक्चुअली लीगली इसको एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया है ताकि ISI के ऊपर भी एक चेक हो और जिनकी ऑडियो वीडियोस जो रिकॉर्डिंग हो रही है उनके ऊपर भी एक तगड़ा ऑफिशियल एक चेक हो। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको शहबाज सरकार ने मजीद लीगलाइज किया है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्यों नहीं बुराई है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एजेंसीज हैं वो ये करती रही हैं। फर्क ये है कि क्योंकि इमरान खान ये कहते थे कि हाँ जी टैपिंग होनी चाहिए, लेकिन वो उसको कानूनी तौर पर लीगलाइज नहीं कर पाए थे, यानी एक इलीगली काम को वो आगे कर रहे थे ना। अब अगर वो काम लीगलाइज हो गया है तो इसके ऊपर PTI की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि PTI को कोई भी कानूनी काम तो पसंद नहीं आता। PTI को तो हर गैर कानूनी काम पसंद आता है। भाई जो लीडर जिसका नाम इमरान खान है, वो एक जना के नतीजे में अगर एक बच्ची पैदा कर ले, एक नाजायज़ औलाद पैदा कर सकते हैं, नाजायज़ तरीके से वज़ीर आज़म बन सकते हैं, नाजायज़ तरीके से पार्टी फंडिंग कर सकते हैं, नाजायज़ तरीके से तोशाखाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर काम वो नाजायज़ करते हैं, तो भाई उनको जायज़ काम, उनको लीगल काम कैसे पसंद आएगा। अब इसको लेकर के उमर अयूब की चीखें निकल रही हैं और वो PTI की चीखें निकल रही हैं। वो उमर अयूब कह रहे हैं कि जी मैं ISI को कोर्ट में लेके जाऊंगा, मैं इसको चैलेंज करूंगा। अरे भाई इनको समझ नहीं आ रही है कि एक चीज़ अगर रेगुलराइज हुई है ये अच्छी चीज़ है। उल्टा उमर अयूब क्या कर रहे हैं कि उमर अयूब डरावा दे रहे हैं। किसको डरावा दे रहे हैं? उमर अयूब डरावा दे रहे हैं जी शहबाज शरीफ को। उमर अयूब डरावा दे रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब को। यानी उमर अयूब किन शख्सियात को डरावा दे रहे हैं? वो शहबाज शरीफ जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं और कमर की शदीद तरीन तकलीफ के बावजूद उन्होंने बदतरीन जेल देखी। उस आसिफ अली जरदारी साहब को जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है, इससे पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको डरावा दे रहे हैं कि देखें जी आपने ISI को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी है, ये बड़ा गलत काम किया है, ये बड़ा इसका नुकसान हो जाएगा। उस आसिफ अली जरदारी को दे रहे हैं जिसने एक्चुअली 11 साल का टॉर्चर जेल सही है, जिन्होंने सख्त तरीन ऑपोजिशन बर्दाश्त की है, जिन्होंने सख्त तरीन जेल, सख्त तरीन मौसम, सख्त तरीन टॉर्चर बर्दाश्त की है, उसको डरावा दे रहे हैं। मतलब कि ये दिन भी आ रहा था। अब मसला ये है कि हमारी सियासत इन दोहरे मयारात से भरी पड़ी है। इस वक्त हुकूमत चूँकि नून लीग की है तो सारी की सारी जिम्मेदारी जी नून लीग पर डाली जा रही है और उन्हीं पर आयद की जा रही है कि जी अगर कोई मुदाखलत होती है तो उसकी जिम्मेदारी नून लीग की है। अब अगर नून लीग हुकूमत में होते हुए कुछ करने की कोशिश करती है, जैसे कि वो क्या था, मैं क्या सुन रही थी, राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जी सोशल मीडिया की खबरों के ऊपर जो है आप कान ना धरा करें हैं, और सोशल मीडिया की सारी खबरें ठीक नहीं होती हैं, बल्कि साथ ही साथ वो क्या कह रहे थे, सोशल मीडिया को अहमियत यहाँ दिया करें। राना सनाउल्लाह जज साहिबान से अपील कर रहे थे और वो अपील इसीलिए कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं जो अदलिया है, जो जज साहिबान है, वो इस मामले के अंदर रोड़े अटका रही है, क्योंकि अदलिया सोशल मीडिया रेगुलेट करने के लिए की जाने वाली कानून साजी मंजूर होने नहीं दे रही है। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब उनसे जो है ये अपील कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है अदलिया, खुदा का वास्ता है जजेस साहिबान, या आप सोशल मीडिया के पीछे इतना ना पड़े। होता क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव है, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो उस तरह से एक्टिव नहीं है, तो ये जो जमातें जो कि एक्टिव नहीं हैं और वो जमात जो कि एक्टिव है वो सेंसेशनलाइज करती है, वो प्रोपेगेंडा करती है, डराती है, धमकाती है, झूठ फैलाती है। और कोई भी सीट पर बैठ करके बेइज्जत नहीं होना चाहता, कोई भी रिटायरमेंट से पहले बेइज्जत नहीं होना चाहता, कोई गालियां नहीं खाना चाहता, किसी को नहीं शौक है कि उसकी माँ बहन को गालियां पड़ें, क्योंकि PTI को तो यही काम है। तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। भाई अव्वल तो होना तो नहीं चाहिए,
जजेस भी अगर हो गए इन्फ्लुएंस तो फिर जजेस किस बात के? जजेस तो जजेस इसीलिए है ना कि वो इतने बड़े मनसब पर इसीलिए बैठे हैं ना कि वो प्रेशर बर्दाश्त करें, और अगर वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो इसके ऊपर तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। लेकिन सवाल इस चीज़ पर भी उठेंगे कि जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी है, वो किस तरह पीटीआई के एक वज़ीर की फ़ोन कॉल के ऊपर बमा अहलो अयाल मतलब बाकी और जज साहिबान के साथ भी जाया करते थे। इंक्वायरी तो इस चीज़ के ऊपर भी होनी चाहिए। 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिख करके ये तो बता दिया कि जी हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारे पे बहुत प्रेशर हो रहा है। अपने उन्होंने जो पावर है वो इस्तेमाल नहीं की, उसके लिए वो एक सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं, उसके लिए वो एक हायर कोर्ट को लिख रहे हैं, उसके लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख रहे हैं। बाबर सत्तार साहब से उनकी रेजिडेंसी के बारे में, उनकी मुल्क अमेरिका के बारे में पूछा गया तो उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी के बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि एक वज़ीर की कॉल के ऊपर, दावत के ऊपर उनकी जो है वो खाने अटेंड किया करते थे, तो इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो उनको फेवर देते होंगे ना। तो इसके बारे में अगर कोई इंक्वायरी की मांग नहीं कर रहा तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है। उल्टा उमर अयूब साहब और पीटीआई इस पर सीखपा हो रही है कि जी आईएसआई को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त क्यों मिली है। इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि भाई ये जो आप जजेस को बुलाते रहे हैं और आपके लोग, आपके वज़ीर जजेस को खाने रोटियां शोटियां मुफ्ते की जो खिलाते रहे हैं, वो किस चक्कर में? क्योंकि हमें तो ये पता है देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो अगर ये फ्री लंच नहीं है तो इसके बदले में क्या दिया गया है, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो पूरे के पूरे मामले के ऊपर वो आईएसआई के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर डाल दिया कि जी नून लीग है और नून लीग को मुदाखलत रोकनी चाहिए और नून लीग को सब कुछ करना चाहिए। तो जो माजी में आप करते रहे हैं उसकी क्यों ना अकाउंटेबिलिटी की जाए। आज अदलिया को भी याद आ गया है, आज अदलिया भी कह रही है कि जी इधर कंटेम्प्ट है तो इधर नोटिस भेजना है तो उधर नहीं भेजना। ये जो इधर जो दोहरे मयार हर जगह पे, हर एस्पेक्ट पे नजर आ रहे हैं, जब तक ये दोहरे मयार नहीं खत्म होंगे तब तक पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा सियासी तौर पर, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से। तो ये सोचने वाली बात है। एनीवेज मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी 2 खबरें हैं। चाचू छा गए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कमाल कर दिया है। ये वाला कमाल नहीं किया कि एक तो उन्होंने आईएसआई की और ये जो टैपिंग वाइपिंग वाली चीज़ है इसको स्ट्रीमलाइन किया है, उन्होंने और भी बड़ा कमाल किया है। और वो जो कमाल कर रहे हैं ना वो गेम चेंजर हो सकता है। उसकी तफसीलात मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।